जो है ना कटा हुआ है। हाँ, today we are going to discuss about the very other additives which are used in the cheese making. We have already discussed the additives starter culture and rennet. These are the major two additives which are generally used in almost all variety of cheese except few one. So we are actually using starter culture. Other than a starter culture or rennet, what are the other additives that are being used in dairy industry, in cheese industry, and also we are going to discuss and what are the limitation, or what are the maximum limit actually fixed by the top agency. अगर हमको वैश्विक स्तर पे करना है वर्ल्ड लेवल पे, तो there is a joint venture of FAO and WHO that actually decide the limitation of the any type of additives, because these additives have some side effects on the consumption through any type of product, through any type of food material. So for exporting the product or to sell the product in overseas market, we have to go for adopt the Codex Alimentarius Commission, which is regulated by WHO and FAO. So what are the limitations that has been laid down by the FAO or WHO? And for our country also, there is a FSSI which actually regulates the limits of the different type of additives, either additives used for improving the shelf life or improving the flavor or improving the other texture attributes of the cheese, and at the same time we can use preservative for enhancing the shelf life of variety of cheeses. They may be chemical, they may be bio-based, so we have to decide the limit so that the consumer may be not affected when they consume in form of any type of product, either cheese or any other food material. So here we are going to what are the ingredients that is actually recommended or allow for addition to the cheese. नंबर 1 हमने बताया था सोडियम क्लोराइड, जो कि साल्ट के रूप में यूज करते हैं हम लोग सभी, ऑलमोस्ट सभी चीज में हम साल्ट यूज करते हैं. सोडियम क्लोराइड इज परमिसिबल. उसके बाद हम लोग है लैक्टिक एसिड वी कैन यूज, साइट्रिक एसिड वी कैन यूज, फास्फोरिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कैटलेज. उसके अलावा राइबोफ्लेविन है ना, कलर मटेरियल के रूप में राइबोफ्लेविन यूज कर सकते हैं, और बीमेरिशिन यूज कर सकते हैं. उसके बाद क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल यूज करते हैं कलर, माने अगर किसी भी चीज का कलर अगर व्हाइट करना है तो वी आर एक्चुअली ब्लीच द चीज, एंड द क्लोरोफिल इज एक्चुअली यूज्ड फॉर ब्लीचिंग द येलोइश चीज to white cheese, because some variety of cheese is preferred characteristic white in color by some specific region of the country. So we are actually use these additives. And what are the limitation of these additives? हमने बताया था कि एनाटो यूज करते हैं, बीटा कैरोटीन यूज करते हैं. तो what is the limit? The limit of the combination, either in combination or alone, we can use not more than 0.06% by weight. उसी तरह से हमने बताया था कि we can also use calcium chloride at the rate of 0.02 to 0.04% in case of cow milk. और हमने रीजन भी बताया था कि why we are actually adding calcium chloride, because that calcium chloride is actually gives the firmness of the curd, and if the level of calcium is low, then the proper coagulation may not take place, and firmness of curd, desirable curd is not we cannot obtain from the cheese milk. So calcium chloride is added. तो उसमें हम लोग दोनों 0.02% से 0.04% यूज कर सकते हैं. इसके बाद हम लोग जो है सॉर्बिक एसिड या सोडियम और पोटासियम का सॉर्बिक साल्ट है सो यूज कर सकते हैं. उसके बाद मैंने बताया उसको कितना कर सकते हैं 0.3% बाय वेट. इसके बाद मैंने बताया था कि हम लोग है तो सोडियम और कैल्शियम नाइट्रेट ये दोनों यूज कर सकते हैं, और इसकी मात्रा जो है 0.02 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना. दिस इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय
Codex inventory commission, the maximum limit is not more than 0.02%. Or we are also adding sodium carbonate, sodium bicarbonate, calcium carbonate, है ना, for reducing the acidity level in the cheese curd. Some varieties there, that is actually to adjust the pH level, we are actually adding the sodium bicarbonate also. So what will be the limit? So here we can use not more than 3% of by weight. Similarly, we can use phosphate at the rate of not more than 0.002% by weight. इसी तरह से नाइसिन, that is the नाइसिन क्या है? नाइसिन इज ए बैक्टीरियोसिन जो होता है ना, बैक्टीरियोसिन जो कि अभी हाल में डॉक्टर हार्टी ने बताया था कि what are the biopreservatives, what are the different type of biopreservatives by which we can actually, है ना, naturally we can actually extend the shelf life of the any product, either paneer, cheese or anything. So niacin is the additives which can be used, which is a bio based, and which can be used even in chena, even in paneer, or some variety of cheese also, to improve the shelf life of the cheese. So niacin we can use, but not more than 0.25%, 0.25% by weight. इसी तरह से हम लोग अगर हम लोग वे प्रोटीन का यूज करना चाहते हैं, बिकॉज इन सम वेराइटी टू इंक्रीज द लेवल ऑफ टोटल सॉलिड, दे आर some country are actually adding whey protein or whey protein concentrate to the cheese meal, है ना, but it should be not more than 20%, है ना. इसी तरह से हम लोग बेंजोइक एसिड और सोरिक एसिड का साल्ट ये भी है सो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी लिमिटेशन है. इसी तरह से हम लोग को जो साल्ट यूज कर सकते हैं उसका पर्पस ऑलरेडी है कि हम लोग रिस्टोर करते हैं, है ना, साल्ट का बैलेंस. उसी तरह से साल्ट यूज करने का और क्या पर्पस है? टू चेक द ग्रोथ ऑफ यूटिफैक्टिव बैक्टीरिया, टू इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ द कर्ड. फिर उसी तरह से हम लोग एसिड यूज कर सकते हैं. एसिड आइदर एलोन यूज कर सकते हैं या सप्लीमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, है ना. इसी तरह से हम लोग कलर और ब्लीचिंग एजेंट, color and bleaching agent both are actually used, है ना. Similarly, some variety of cheese there is some smoking is actually done because for improving the shelf life of the cheese, because smoking is actually very much actually effective against the fungi or yeast and mold also. So to some extent we can also use smokes to enhance the shelf life of the cheese also. इसी तरह से हम लोग विदेशों में तुम सुने हो कि वाइन और चीज साथ करते हैं, तो सम वेराइटी ऑफ चीज वी आर आल्सो एडिंग बियर, वाइन, लिकर्स, है ना, टू इम्प्रूव द फ्लेवर ऑफ द चीज, लाइक जस्ट लाइक somewhat flavor we can get from beer and wine. Similarly we can और इसी तरह से हम लोग जो है जैसे हम लोग, और मैं बताना चाहूंगा कि जो हम कैल्शियम क्लोराइड अगर जो यूज कर सकते हैं उसका हमने बताया था कि वो है सो रीनेट कोगुलेशन टाइम और जेल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना. अब हमारा क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसिडुलेंट्स आर आल्सो एडेड टू द चीज. तो एसिडुलेंट में मैंने बताया था कि लैक्टिक एसिड, एक होता है लैक्टिक एसिड जो नेचुरल, दैट इज प्रोड्यूस्ड इन सीटू बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, नेचुरली जो है मिल्क है. और उसके बाद when we add the culture at the appropriate temperature that is actually required for the growth of that related microorganism. Suppose we are adding dahi culture or mesophilic culture, then the temperature of the cheese milk should be 27 to 32 degrees centigrade. But when we add wort culture or thermophilic culture, that is Lactobacillus bulgaricus or Lactobacillus thermophilus, then the curd, then the acidity, then we can provide temperature 42 degrees centigrade to 45 degrees centigrade, 46 degrees centigrade, है ना, because this temperature is conducive for growth of yogurt culture. तो इस तरह से हम लोग करते हैं. और उसके बाद जब हम कोगुलेंट करते हैं तो पता है तुमको चीज कर्ड को काटते हैं, then we can drain the curd and we get the curd from natural lactic acid bacteria, जो natural flora है मिल्क में, without any additives. उसमें जो हम चीज जो पाते हैं उसमें क्या, there may be chances of flavor defect because
there may be chances of growth of other microorganisms along with the culture और जो हम ऐड करेंगे उसके साथ डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ there may be chances of defects of body and texture defects। बॉडी एंड टेक्सचर डिफेक्ट्स गैस फॉर्मेशन हो सकता है ना, उसमें है सो उसमें बॉडी टेक्सचर जो है उसका जो कोहेसिवनेस है देयर में बी अफेक्टेड। तो इस तरह का डिफेक्ट हम लोग को आता है। तो इसलिए क्या किया चीज इंडस्ट्री ने लार्ज स्केल पे चीज प्रिपरेशन करने के लिए वी कैन एक्चुअली अवॉइडिंग द यूज ऑफ मतलब सेटू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इटसेल्फ। देखते हो हम लोग जो गांव में क्या करते हैं कि वी आर एक्चुअली कीपिंग द क्रीम विच इज एक्चुअली स्कीम ऑफ फ्रॉम द डेली स्कीम ऑफ डेली एंड आफ्टर दैट क्या करते हैं हम उसको ठंडे स्थान पे जहां 25 डिग्री 27 डिग्री टेम्परेचर वहां पे वो रखते हैं। दे आर एक्चुअली नेचुरली सावरिंग है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अपने से ग्रो करते हैं, इन सीटू उसको करते हैं है ना। लेकिन लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी आर एक्चुअली गो फॉर प्योर कल्चर और डिफाइंड कल्चर। जैसे हमने बताया कि जैसे एनसीडीसी कल्चर है, नेशनल कलेक्शन फॉर डेयरी कल्चर जो एनडीआरआई में है एस्टेब्लिश, तो वहां पे अगर हमने लिख दिया कि एनसीडीसी 167 दैट मींस दैट कल्चर इज एक्सक्लूसिवली सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट गिव्स same aroma flavor and some all culture has their own flavor है ना। on they are actually contributing not only in flavor but also contributing in body and texture of the product, even color may be somewhat affected by the culture। तो हम लोग प्योर कल्चर को हमने बताया था कि जो स्टार्टर कल्चर है, फिर स्टार्टर कल्चर के हम लोग क्या करते हैं वी आर चेकिंग द एक्टिविटी, स्टार्टर एक्टिविटी टेस्ट से हम लोग देखते हैं कि स्टार्टर कितना एक्टिव है। उसमें मैंने बताया था कि व्हेन द लैक्टिक एसिड इज मोर देन 90% then the culture is best suited for the cheese manufacture or any type of fermented import। तो एक्टिविटी ऑफ स्टार्टर कल्चर भी चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग मदर कल्चर बनाते हैं, देन वी कैन prepare bulk culture and that bulk culture according to the product requirement, according to the product going to manufacture, accordingly we are actually deciding the content of the starter culture। We are adding a starter culture at the rate of 1.5% in the case of cheese milk also, but there the concentration is slightly higher in case of buffalo milk। तो इस तरह से हम लोग कल्चर बनाते हैं, उसमें भी हम लोग प्रॉब्लम आया। तो इस तरह का जो चीज कर्ड आता है दे आर एक्चुअली है ना, द टेक्सचर ऑफ द कर्ड इज हाईली सेटिस्फैक्टरी and we are getting the good quality curd and which gives the specific flavor development during the ripening। इसी तरह से चीज कलर हमने बताया था, चीज कलर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अनेटो कलर चीज कलर होता है। अनेटो कलर कहाँ से आया है, तो जो सर्च होता है ना साउथ अफ्रीका में विक्सा ओरिला है ना, वहां पे हम लोग है सो उस सीड को और जो पिगमेंट होता है ना उस सीड में पिगमेंट जो होता है कितना होता है 0.76 ग्राम पर 100 ग्राम। और ये जो पिगमेंट जो एनेटो में होता है सीड में वो क्या होता है एसिड डिक्सिन होता है ना। तो वो क्या होता है वो उसको हम अल्कलाइन सॉल्यूशन में एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो ये दैट इज द अंतर। इसमें चीज वाला में हम क्या करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एनेटो कलर को। और ये क्या करता है एनेटो कलर क्या होता है वेरी ससेप्टिबल टू ऑक्सीडेशन है ना, ये बहुत ही चीज में ऑक्सीडेशन होने के चांसेस को भी लेकिन बढ़ाता है। और ये जो है ये ब्लू विनेट चीज में हम सालों से यूज करते आ रहे हैं है ना। तो हम लोग जो है एनेटो कलर जो कि वेरी मच जो वेजिटेबल सोर्सेस का है, जो कि साउथ अफ्रीका के विक्सा ओरिला प्लांट से सीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसको जो है वेराइटी ऑफ चीजेस में इसको हमको यूज करते हैं। और इसको हम क्या करते हैं इट इज एक्सट्रैक्टेड इन यूजिंग अल्कलाइन सॉल्यूशन है ना, NaOH और NaOH और KOH इसमें हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। और हमने बता चुका है कि व्हाट शुड बी द क्वांटिटी फॉर एडिशन ऑफ कलर इनटू द चीज। इसके अलावा हम लोग बताया था कि राइबोफ्लेविन पिगमेंट यूज कर सकते हैं। राइबोफ्लेविन जो है ना, ये क्या करता है, ये कहां से प्राप्त होता है, दिस पिगमेंट कंटेन इन सेरम पोर्शन ऑफ वे विथ ए ग्रीन येलो फ्लोरेसेंस
है ना। तो राइबोफ्लेविन इट क्या करता है, इट गिव्स ग्रीनिश थिंग टू द कर्ड। अगर हम अगर हम रिबोफ्लेविन यूज करते हैं तो ये क्या करता है, इट गिव्स ग्रीनिश थिंग टू द कर्ड्स। हाउएवर ड्यूरिंग चीज मेकिंग मोस्ट ऑफ द राइबोफ्लेविन जो भी इसे है वो गोज विद द वे, है ना। देयरफॉर the coloring agent particularly riboflavin have very little effect or negligible effect on the towards the contributing the color of the cheese। इसी तरह से हम लोग बताए थे कैरोटीनॉइड्स यूज कर सकते हैं कलर में, है ना। ये क्या करता है, डीप येलो करता है, ये येलो कलर चीज को प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत सारे चीज में हम लोग येलो एकदम प्रेफर करते हैं, है ना। क्योंकि तुम जानते हो कि मोस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ चीज जो है वो कॉमन से प्रेफरेबल है। तो इस तरह से हम लोग चीज कैरोटीनॉइड्स यूज करते हैं इसमें, और हम लोग ऐसो कैरोटीनॉइड्स को यूज करके बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीज में इसका यूज होता है, या तो एलोन जैसे मैंने बताया कि एनोटो के साथ, या बीटा कैरोटीन के साथ, है ना। उसकी मात्रा मैंने बताया कि कोडेक्स एलिमेंट्री कंडीशन से कितना है WHO के अनुसार। तो एनेटो और बीटा कैरोटीन हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं इसमें। और जो येलो कलर है वो उनको पता है कि दैट इज कैरोटीनॉइड्स डिपेंड्स अपॉन, है ना। दूध अगर काउ मिल्क का है तो उसमें कैरोटीनॉइड्स की मात्रा ज्यादा है तो येलोइश ज्यादा होगा। काउ मिल्क से बनाओगे चीज तो नेचुरल रूप से पीला येलोइश होगा, है ना। बट इन केस ऑफ बफेलो मिल्क वी आर एक्चुअली एक्सोजेनली वी आर एडिंग कैरोटीनॉइड्स टू द चीज मिल्क टू गेट द यूनिफॉर्म कलर। और ये क्या करता है, जो कलर है मिल्क का वो डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर। जैसे मैंने बताया कि ब्रीड का, तो अगर काउ मिल्क है तो नेचुरल से होगा, बफेलो है तो नहीं होगा, सीप मिल्क है तो व्हाइट आएगा। तो इस तरह से हम लोग उसमें डिपेंड करता है। अगर चारा हम लोग जो फीड देते हैं उससे भी बहुत डिपेंड करता है। इफ यू आर फेड योर काउ with the carotene carrots we feed carrot to the milk animals, then you can get yellowish color in the ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है, और इसके अलावा सेफ्रॉन भी हम लोग यूज करते हैं कुछ चीज वैरायटी में, जैसे कैसियोटा जो इटली का वैरायटी है, लुबेनबर्ग जो ऑस्ट्रिया का वैरायटी है, और बॉक्स एक जर्मनी की वैरायटी है। वो सब में हम लोग इवन वी आर यूजिंग एनेटो, बीटा कैरोटीन और आल्सो सेफ्रॉन, दैट these are actually used in the as a color additives to the different variety of cheese। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि ब्लू वेनेट चीज में भी हम लोग यूज करते हैं। ब्लू वेनेट चीज जानते ही हो कि रोकीफोर्ट और जो होता है कैम्बर्ट चीज उसमें। इसके अलावा हम लोग जो है सम केमिकल्स आर आल्सो रिकमेंडेड एडेड टू द मिल्क। मैंने बताया था कि जैसे हम लोग मोज़रेला चीज बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग अदर क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से हम लोग जो परमिसिबल है, जो परमिसिबल एसिड है, फूड ग्रेड है, हम लोग को जो एसिड यूज करना है दैट शुड बी द फूड ग्रेड क्वालिटी, है ना। फूड ग्रेड क्वालिटी इज ओनली अलाउड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ चीज। कौन कौन सा है वो सा, तो लैक्टिक एसिड है, ग्लेशियल एसिड है, एसिटिक एसिड है, जूस और साइट्रिक एसिड है, और डी ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन है, फास्फोरिक एसिड है। दीज आर एक्चुअली यूज्ड टू ब्रिंग द कोगुलेशन ऑफ द मिल्क। सबका पर्पस क्या है, टू कोगुलेट द मिल्क, है ना। इसमें हम लोग जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेते हैं वो किस चीज के लिए, क्वांसो ब्लांको चीज होता है जो कि फ्रेश टाइप चीज होता है। वो क्वांसो ब्लांको कहाँ का वैरायटी है, लैटिन अमेरिका का है। और इसमें हम लोग जो है 2.5 लीटर डाइल्यूट करते हैं